हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर आया है। और इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से, और उसको हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाए जाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें हम हर एक बारीकी पे प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आपको पता है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, our environment, class 10 CBSE NCERT here. You know that is an important chapter for the environment, and our questions here define the environment, various explanation here. You know that first of all understand you what is environment. The environment is the most important point here, and other factors also important, but first of all understand you environment. The biotic and abiotic factor which surrounding any living organism is considered as its environment. You know that this is a clear environment here. Biotic and abiotic factor which is surrounding any living organism is considered as its environment. It can be generally defined as the community of organisms living in the particular environment and physical element in that environment with which they interact. That's important here. Generally defined as the community of organism living in a particular environment, and there are physical element in the environment with the interact to the each other. And then here we often use the word environment. That's important point here. We often use the word of environment. The environment can be defined as the physical and biological world whereon organism lives here. And literally speaking, on organism immediate surrounding is a constant, it is the environment, and which includes both biotic or abiotic component around him. That is the use for the word of environment. Next point here, the effects of human activity on the environment. That's the most important point here, the effect of human activity on the environment. You know that any types of change that people make in our environment affect the animal, plants and the land. That's important point here, that the change that people make in our environment affect their animal, plants and the land. And some change are helpful and some may be harmful to the environment. That's important here. The changes are helpful, there is a very less amount, but the harmful is environment, there is a large amount here. And clearing land on farming, construction of home, road and shopping center is helpful to the people. But animal habitats
and plant may be destroyed in this activity here. And cleaning of land may be result in a soil erosion and the eventual is the loss of topsoil here. That is the activity of the effective for the environment and that is a bad condition for the environment here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं हमारा पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण को परिभाषित करें और इसके बारे में संक्षिप्त व्याख्या करें, बताएं कि पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है और पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन यहाँ रखा है पर्यावरण के अंतर्गत, तो आपको जितने पॉइंट है कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट के अंतर्गत भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही समझदार मन से समझदारी से लिखना भी है और समझना भी है और इसको अच्छे से देखने की कोशिश भी करना है कि इसमें किन शब्दों का क्या महत्व रहता है। हमारा देखा जाए तो पर्यावरण चैप्टर है और पर्यावरण का क्वेश्चन ना हो तो ये बात तो संभव है नहीं। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने सबसे प्रथम क्वेश्चन पर्यावरण के हर एक पहलू का जो है एनालाइज कर रहा है। तो देखा जाए तो सबसे पहली बात यहाँ क्वेश्चन सिंपल है कि पर्यावरण के बारे में आपने बताना है। कहते हैं किसी भी जीवित जीव को घेरने वाले जैविक अजैविक कारकों का उसका पर्यावरण माना जाता है। यानी साफ शब्दों में बताऊं तो पर्यावरण का मतलब होता है जिसमें जैविक अजैविक यानी दोनों तरह के जीव जो आपस में जो है अंतरक्रियाएं करते हैं, आपस में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, इन सारे क्रियाओं को जो है पर्यावरण का नाम दिया जाता है। यानी हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, जो जैविक भी हो सकते हैं अजैविक। कहते हैं जैविक जो जीवित होते हैं, अजैविक जो मृत होते हैं, उनको हम पर्यावरण कहते हैं और इसे आम तौर पर एक विशेष वातावरण में रहने वाले जीवों और उस वातावरण में भौतिक तत्व के समुदाय के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है जिनके साथ वह बातचीत करते रहते हैं। यानी जनरली देखा जाए तो ये जीवित भी जीव हो सकते हैं और ये भौतिक रूप में भी विद्यमान होते हैं। तो साफ शब्दों में हो गया कि जैविक अजैविक जो हमारे आसपास घेरे हुए हैं उनको ही हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरी बात होता है कि हम अक्सर पर्यावरण शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपने अगर इन क्वेश्चनों को समझ लेते हो ना तो आपके सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। देखा जाए तो हम अक्सर पर्यावरण शब्द का प्रयोग कब करते हैं। कहते हैं पर्यावरण को भौतिक या जैविक दुनिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही होता है उसमें भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकती है और इसी दुनिया को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का मतलब ही यही होता है जिसमें जीवित और मृत दोनों तरह के जीव जंतु जो है अपना अंतर्क्रियाएं होती रहती है। कहते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं। आपको पता ही है कि आज जितने भी पेड़ पौधे हैं काट देते हो आप तो उनकी लकड़ियों का जो है आम इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये जीवित रहते हैं फिर भी इनके इंपॉर्टेंस काफ़ी रहते हैं। तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। कहते हैं जहाँ एक जीव रहता है वो सब पर्यावरण ही कहलाता है। शाब्दिक रूप से कहें तो किसी जीव के निकटतम परिवेश से उसका पर्यावरण बनता है। यानी कोई भी जीव जो अपने परिवेश में रहता है और वहाँ पर अंतर्क्रियाएं करता है उसी को हम पर्यावरण का नाम देते हैं, जिसमें उसके चारों ओर जैविक अजैविक दोनों घटक शामिल हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। दोनों डेफिनेशन में जो आपको बेस्ट लगता है, जो समझ में है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखा जाए तो पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का प्रभाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि मानव ने अपनी गतिविधियों के कारण जो है पर्यावरण को कितना क्षति पहुंचाया है और ये आप भली भांति जानते हो, समझते हो। कहते हैं हमारे पर्यावरण में लोग जो भी परिवर्तन करते हैं उनका प्रभाव जानवरों, पौधों और भूमि पर पड़ता ही पड़ता है। जो भी हमें समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है उसका सबसे अधिक प्रभाव जो है पर्यावरण को ही झेलना पड़ता है। कुछ परिवर्तन सहायक भी होते हैं और कुछ पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। तो देखा जाए तो पर्यावरण के लिए सहायक तो बहुत ही कम तत्व हैं, लेकिन हानिकारक जो है हर कोई है। कहते हैं खेती, घरों, सड़कों और शॉपिंग सेंटरों के निर्माण के लिए भूमि साफ करने लोगों के लिए सहायक होते हैं, लेकिन जानवरों के आवास, पौधे नष्ट हो रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। कहते हैं लोग अपनी लालच में, अपने उपयोगिता में पर्यावरण को जो है बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है। भूमि साफ करने से मिट्टी का क्षरण हो रहा है
और ऊपरी मिट्टी का जो है नुकसान हो रहा है। देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि जितने हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं उससे जो है खेतों का मिट्टी का अपरदन हो रहा है, जनरल सी बात है। और सारे का जो है हर्ष हो रहा है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरकता भी खत्म हो रहा है और जीव जंतु खत्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पेड़ पौधे इतने काट दिए हैं, इतने जीव जंतुओं को ख़त्म हो गए हैं कि कई जीव जंतु जो है विलुप्त होने के कगार के कसौटी पे आ गई है। कहते हैं ये सब हम इंसानों की गतिविधियों के कारण ही हुआ है और इंसान अभी भी नहीं समझा तो आने वाला समय में शायद हमें कोई भी जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है कि पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो जनरल सी बात है, सारे जीव जंतु जो है नष्ट होते चले जा रहे हैं। लोगों को तो फायदा हुआ है, लेकिन इससे जो है पर्यावरण को बहुत ही हानि उठानी पड़ रही है। लेकिन देखा जाए तो एक बात यहाँ पर साफ है कि हम तभी हम हैं जब पर्यावरण है। पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं हैं। तो पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो इंसान का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। कहते हैं जीव है तब हम लोग हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु से ही इंसानों का अस्तित्व बना हुआ है। अगर इंसान अभी भी नहीं समझा तो इंसान का भी सर्वनाश होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण कहते हैं बैलेंस करना जानती है। हम जितना मर्जी कहते हैं चांद पे पहुंच जाए, लेकिन पर्यावरण कभी भी नहीं छोड़ेगा, एक न एक दिन सब बैलेंस कर ही लेगा। इसलिए कहते हैं अगर आपको प्राकृतिक में रहना है तो प्रकृति के साथ मिल के रहिए। और इस पर सिर्फ एक देश का काम नहीं है, हर एक विश्व का, हर एक देश का काम है कि पर्यावरण में संतुलित बनाए रखना चाहिए, न कि पर्यावरण को नष्ट किया जाए। जो व्यक्ति पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, जो देश पर्यावरण को नष्ट करने के जो है कदम उठा रहे हैं, उनका विनाश होना सुनिश्चित ही है। क्योंकि हमने कई सभ्यताएं देखी, हमने हड़प्पा कल्चर भी देखा, मेसोपोटामिया भी देखा, हमने बहुत से सभ्यता देखी जो विनाश हो गई। कहते हैं ये सभ्यता कभी पीछे नहीं थी, हमसे भी आगे विकसित थी, लेकिन इसका जब खत्मा हो सकता है तो हमारा खत्मा होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाता। इसलिए पर्यावरण की जो है सुरक्षित रखना हर एक बच्चे, हर एक मनुष्य, हर एक जीव का कर्तव्य है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना ही उससे बच्चों का केयर भी होगा। और कभी वीडियो देखिए तो स्किप करके ना देखिए, सारे वीडियो को अच्छे समझिए, आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको प्राप्त होता रहे, क्योंकि यहाँ पर तिरपान सेंटर का जो कारवां है वो कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है।